سے ایسی دے نا کہ دنیا دنگ رہ جائے. اسی ضروری مجمع دے ہتھی پمنا ہے اور کسی کا دل دکھا کے مجمع کھڑا کرنے سے بہتر نہیں کہ ٹپیکل بات کر کے ذرا کم داد لے لو. میں دوسری بات ایک اور آپ کے اوپر پھینک رہا ہوں اور دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں بندہ میری بات کی رد پیش کرے میں یہیں سے ممبر چھوڑ دوں گا. میں اپنے ہی گھر میں کھڑا ہوں, بات میری ایسی ہوگی کہ رد کوئی نہیں کرے گا. میں شیعہ سنی بھائیوں کو ساتھ ملا رہا ہوں. ارے علی کو لینے کے لیے وہ ہستی گئی جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے. ارے یہ تو میرے مرشد علی کا پروٹوکول ہے ملنگ سائیں, لیکن علی ڈیزرو کیا کرتا ہے؟ میرے اہل سنت بھائی تشریف لائے ہیں, میں کلیجہ پھاڑ کے میں پلکیں بچھا کے اپنے اہل سنت بھائیوں کو ویلکم کر رہا ہوں اور میں خود میزبان بن کے اپنے اہل سنت بھائیوں سے ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں. میرے اہل سنت بھائیوں, آپ کی مسکراہٹ ہی ہماری اس پوری سجاوٹ کا مقصد ہے. رکھے سر پہ قرآن اور ایک شیعہ بچے کو اس کے سوال کا جواب دے. میرے بھائیوں, ارے علی کیا ہے مجھے نہیں پتا, جو مجھے سمجھ میں آیا ہے مجھے جواب چاہیے. جو علی ایک رات ہجرت کی رسول کے بستر پہ سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے, وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا؟ گزارش سمجھ آ رہی ہے میری؟ ادھر زبان ہاتھ چاہ سکتے ہو, مل کے بولو حیدر حیدر. انکل جی, جو ایک رات رسول کے بستر پہ سویا اس نے اللہ کی مرضیاں خرید لی. بات سمجھ آ رہی ہے سر؟ پکی بات ہے. جہاں سے کام ڈگمگو بھائی کو بولنا ہے, فائدہ ہی نہیں ہے اگر بات نہ سمجھا کے جاؤں تو. میں کرن کیا آیا بچے جو ایک رات رسول کے بستر پہ سویا, چترالی کے آپ صاحب ہوں سچے کھپے نہ وکھائے مولا دا نام, اس نے اللہ کی مرضیاں خرید لی. تو وہ 3 راتیں کعبے میں گزارنے کا کیا لے گا؟ پہلے ہم نے اس پورے پروسیس کو سمجھنا ہے کہ یہ پروسیس کیا تھا. پروسیس سامعین گرامی یہ تھا کہ کلید بردار کعبہ یعنی جس کے پاس کعبے کی چابیاں تھیں وہ تھے علی کے بابا. علی کی اماں گھر سے اٹھیں, بیت اللہ کے سامنے آ گئیں. اپنے شوہر نامدار سے گھر کی چابیاں لے سکتی تھیں لیکن نہیں لیں. آ گئیں در چھوڑ کے دیوار کے سامنے. ارے بی بی دروازے سے راستہ ہے, چابیاں آپ کے سرتاج کے پاس ہیں. فرمایا علی یہ بات تجھے پتہ جو نہیں ہے, میں بھی علی کی ماں ہوں, میں جانتی ہوں آنے والا جو ہے وہ شہر علم کا در ہے, در در میں نہیں دیوار میں لگتا ہے. اے جڑے پیچھے بیٹھے ہو تسی جشن مناؤ آئے ہو نا گھر مان لے ہو در در علی حسنین بڑی اتھنڈک بات. در انکل جی گل صحیح کریں دا پیا, در ہمیشہ در میں لگتا ہے, در در میں نہیں, در دیوار میں لگتا ہے. اب ادھر دیکھیں, میری مخدومہ کھڑی ہوئی, کعبے کی دیوار گر گئی. میری مخدومہ اندر تشریف لے گئی. کرما لو میں کونی ممبر کٹنا تے نہیں, میں تو نہ کھڑا میرے نال بولو نہیں تو باہر لگے ونجو تو منہ پھیر لیو. میں گل کرنی ہے تو میں تمہیں سوچنے دا موقع دینا میں تسی مجلس جشن تو بعد سوچا ہے کہ میں کئی گلاں کیتیاں. دکھ ہوتا ہے مجھے زمانے کا تعصب دیکھ کے, جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کون سی بڑی بات ہے کعبے کی دیوار گر گئی علی کی ماں کے لیے. اتفاقاً پوری دنیا میں دیواریں گرتی رہتی ہیں, زمانہ تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی تو دیکھی ہیں لیکن اتفاقاً دیواریں کھڑی ہوتی نہیں دیکھی. سر جی چادر چو ہاتھ کٹے آئے, جب میری گل وڈی ہے تو ہاتھ چوے آئے. مولا دا واسطہ نے سر جی, تم سونا کوٹ پا کے بیٹھے ہو, چل نظر بات تو محفوظ رہو اس کوٹ دا صدقہ, پر ہاتھ چوے آئے کرما لو. میں نے دیواریں گرتی دیکھی ہیں چاچا جی. میں چاچا جی کداں ڈھاندیاں ویکھیاں, میں اللہ دی قسم ڈھاندیاں پٹاکیاں لے ہی ہاتھ رکھیا تے بھی ڈھس نے کرما لیو. میں کداں ڈھاندیاں ویکھیاں, میں چویندیاں میں کو نہیں ویکھیاں. دیواریں گرتی دیکھی ہیں, دیواریں کھڑی ہوتی نہیں دیکھی. ارے کعبے کی دیوار میں لکیر ہے, دراڑ نہیں ہے, لکیر ہے. دراڑیں اپنی دیواروں پہ نہیں ڈالی جاتی, دراڑیں دشمن کی دیواروں پہ ڈالی جاتی ہیں. یہ بھی علی کے تعصب میں جملہ ہے, کعبے کی دیوار میں دراڑ ہے. ارے کعبے کی دیوار میں دراڑ نہیں, وہ علی کے دشمن کے چہرے پہ تماچے کا نشان ہے.
یا علی میرا بھرا چنگی گل پہ کردا بکل چھٹ تے ہاتھ باہر کٹ مولا بڑے رنگ لینی تے نال دی سنگتی نہیں نال رلا کر مال خیر تو ہی تو انج آیا پیا جویں والی بال دا میچ ہے چنگا بھلا میں زور پہ لینا خیر تو ہی انج نہیں ہوتا ہاتھ چاہ دیوار گر گئی میری مختومہ اندر تشریف لے گئی میری مخدوم اندر تشریف لے گئی دیوار واپس لگ گئی 1400 سال گزر گئے انکل جی وہ نشان آج بھی قائم ہے وہ نشان آج بھی قائم ہوں میں تھوڑے کو تھوڑی جی داد لینا جڑے بیٹھے نہ چپ ترکڑے روے آئے یا علی یا علی یا علی شاشد بلو والوں میرے شیعہ سنی بھائیوں اب میں دیوار کھڑی کرنے تک نہیں آتا دیوار گری اس کے اوپر علماء قم اور علماء لکھنؤ کے نظریات مختلف ہیں جو قم کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں علی کی ماں کے استقبال میں کعبے کی دیوار ہٹ گئی اور لکھنؤ والے کہتے ہیں کعبے کی دیوار ہٹی نہیں کعبے کی دیوار پھٹ گئی امان کیمرہ پھیر کے میرا بھرا مولا نوکری قبول کرے نے ایک بار مجھے بندہ بتانے جو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتا میں مولا کی میں شیر پڑھ کے کم نو کھیڑ نہیں بنایا میرا بھرا میں گل کرنا آیا میں نے کیمرہ پھیر کے بندہ 10 یار جڑا والی نظر تے جشن وچ ہاتھ کے میں نہیں چاہتا قم والے کہتے ہیں علی کی ماں کو دیکھ کے کعبے کی دیوار ہٹ گئی لکھنؤ والے کہتے ہیں کعبے کی دیوار پھٹ گئی نہ میں ان کی نفی کرتا ہوں نہ میں ان کی مجھ سے وہ بھی اچھے مجھ سے یہ بھی اچھے میں دونوں فیملیز کو ساتھ ملا کے چلتا ہوں میں دونوں کی بات کو تائید کرتا ہوں میں جملہ ایسے کہتا ہوں دیوار کچھ ہٹ گئی دیوار کچھ پھٹ گئی رکھ میرے سر پہ قرآن علی سمجھ کے ہٹ گئی حیدر سمجھ کے پھٹ گئی جس ہاتھ نیچے آیا جشن چاہے ہی نہیں شاست بولنے والے ہو مل کے بولو حیدر حیدر علی سمجھ کے ہٹ گئی 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 حیدر سمجھ کے پھٹ گئی جسے حیدر کے معنی آتے ہیں حیدر چیر پھاڑ کرنے والا راضی ہو تسی علی سمجھ کے ہٹ گئی اے من لگتا باوے رضی شوری جان بوجھ کے کوئی 2-4 خود کچھ بھی منگائے ہوئے مولا وڈ رنگ والے دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی حیدر سمجھ کے گل میرے کو ڈاڈی آئی گل میرے کو ڈاڈی ہے جے من کرن دے تا کروا لو علی سمجھ کے ہٹ گئی سر جی حیدر سمجھ کے پھٹ گئی اورا ویکھو 1400 سال گزر گئے نشان قائم توجہ ہے جناب صاحب سامعین گرامی خدا رہا پلیز میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں سوشل میڈیا اتنا بڑھ گیا یہ جو موبائل ہے نا اس نے حد رفتار اور صورت اختصار کو اتنا تیز کر دیا کہ پوری دنیا آپ کی ہتھیلی میں سما گئی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ جو حج عمرہ کرنے جاتے ہیں یہ وہاں جا کے پوچھتے نہیں ہیں کہ 3 کونے تو ٹھیک ہیں یہ ایک کونے میں کیا نشان ہے پھر مجبوراً وہاں کے ذمہ داروں کو بتانا پڑتا ہے کسی نہ کسی طریقے یہ 1400 سال پہلے کون آیا تھا او میں صدقے بن جاؤں کس کی بیٹا میں نعرہ مرندہ پہ کون آیا تھا کس کی ماں کے استقبال میں کعبے کی دیوار ہٹ گئی تھی دیوار گر گئی تھی تو سنداد نہیں دیونی میں جملہ پڑھوں علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کا میرے مولا ان کے آگے کے سفر آسان فرمائے بہت نگینے لوگ تھے خدا کی قسم ٹر گئے بندے حسین بادشاہ کی قسم اتنی بڑے سے بڑوں سے لے کر اب تک کہ میں نالائق تک تھے علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب سے بڑا نام ڈاکٹر رشید ترابی صاحب سے بڑا نام خطابت میں کوئی آیا ہے آپ مجھے خود بتائیں ان سے لے کر حقیر علی عباس عسکری تک ہر کسی کا یہی زور ہوتا ہے یہی کوشش ہوتی میں زور لاما تو مجمع کھلو بنجے ایسے ویل چیئر پہ ٹیک لگا کے اطمینان سے نسیم صاحب بیٹھے ہوتے تھے خدا کی قسم قیامت ڈھا دیتے تھے آپ داد اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کعبے کی دیوار میں لکیر کیا ہے
दाद आपने इसलिए नहीं दी क्योंकि आपको यह नहीं पता कि ये जो काबे की तामीर है ये 11वीं तामीर है। इससे पहले 10 बार काबा तामीर हो चुका है। कभी मिंजनीकों से हमला करवाया गया, कभी पथराव किया गया, कभी आग फेंकी गई, कभी कोई हमला, कभी कोई हमला। 10 ये जो आज की इमारत है ये आज से 400 साल पहले तुर्की के बादशाह ने बनाई। भाईजान बंदा जश्न च नहीं आया, मुस्कुरा भी जड़ा नहीं सकता। ये तुर्की के बादशाह ने 400 साल पहले बनाई है, जिसकी अब हम ज़ियारत करते। थक गई है खुदा की कसम साइंस, हैरान हो गए इंजीनियर। नई काबे की तामीर करके पीछे हटते हैं, अकल दंग रह जाती है, दरार फिर भी मौजूद है। हाय 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 हाय। ये किबरियाई भी कभी पर्दा पड़ा है, कभी विला के काम न रोको कहीं से वली ना आ जाए। ये किबरियाई पे पर्दा कभी पड़ा है, कहीं विला के काम न रोको फिर से वली ना आ जाए। इसलिए दरारें छुपाई हैं तुमने कि कहीं से फिर से अली ना आ जाए, कहीं से फिर से अली ना आ जाए। अली ना। मैं थोड़ी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन हुण मैं 6 मिसरे पे पढ़ता हूं। बड़ा भार है थोड़ा, खुद थोड़ी ऐनक दा मुੱਲ ही नहीं कोई, खुदा दी कसम। मैं गल करूंगा इस पासे वेखना, मैं जिंदगी दूजी बारी एक हुण पिंडी पढ़न, एक मैं जिंदगी च दूजी बारी पढ़दा पिया। लखनवी जबान है, हिंदुस्तानी लहजा है, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। इस पासे वेखना है, बंदा कोई चुप कर गया ना, भेड़ थोड़ा मेरा ने, ओ भावे चुप रहे। गल मैं करदा पिया, मिसरा मिसरा। जलवा नुमा हुई जो शबे आमद इमाम। पहली 5 लाइनों की छुट्टी, 6वीं लाइन पे फिर बंदा बताना है जो नहीं बोलता। भैया बिल खसूस हसनैन। जलवा नुमा हुई जो शबे आमद इमाम, चारों तरफ छलकने लगे बस खुशी के जाम। हुक्म खुदा से बिनते असद ने किया खिराम। फिर मिसराए आशिक के इंतजार की घड़ियां हुई तमाम। उस बंदे लंगर घड़ुल कर छोड़े जो हाथ नहीं जा सकता। अंकल जी आशिक के इंतजार की घड़ियां हुई तमाम। फिर काबा खुशी से झूम उठा, मुस्कुरा दिया, दिल चीर कर अली के लिए दर बना दिया। मिलके बोलो अली लाल कलंदर। तजरीब रखिए। काबा खुशी से झूम उठा, मुस्कुरा दिया, अरे दिल चीर कर अली के लिए दर बना दिया। मैं तो गल पे कर 10 मन शेर वाले पास ए लैके आए कर मालिया, दिल चीर कर अली के लिए। अबे नई तामीर, वो काबे ने दिल चीरा ना, दर बन गया, निशान रह गया। गल मैं अपनी उसे गल्ला कर मालिया, जिस टाइम तक जाकर नहीं होना थोड़ी मैं जान नहीं छड़नी। तो मैं भी ये चाहना भी वो आवैन, ताकि मैं थोड़े सिरों भी ये पंड लावा तो वैया कर मालिया। हैरान हो जाते हैं, नई तामीर मौजूद होती है। नसीम अब्बास रिजवी साहब जो फरमा गए थे, कहते हैं मेरे पास आज भी ना 1965 के अखबार का खामा मौजूद है, जिसकी सुर्खी में पता क्या जानते हो क्या लिखा हुआ है? 1965 का अखबार है, उसकी सुर्खी में लिखा हुआ है कि सऊदी हुक्मरानों ने जर्मनी से बड़े बड़े इंजीनियर्स मंगवाए। गल मेरी पिछले साफ वाले नाले अगले खुदा दी कसम मेरे नाल परवाज करके वाली नजफ दी अली से सजदा कर पिछले जड़े बैठे हो। इंजीनियर बुलवाए गए और उन इंजीनियरों में जो सबसे उनका मास्टरमाइंड हेड था, उस इंजीनियर को खाना काबा की लकीर दिखाई गई। तवज्जो, लकीर दिखा के उसे कहा गया कि तूने इस निशान को छुपाना है, प्लेन कर दे जैसे ये कभी था ही नहीं। वो पीछे गया, उसने जाकर अपने ग्रुप के साथ प्लान किया। वो जितनी धातें लाया था उसने उन्हें मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया। तमाम धातों को मिक्स करके सर जी एक धात बनाई। उस धात को मैं आपके लुत्फ और इस गौर करम पे खुदा की कसम हैरान जाऊं, अल्लाह करे ऐसे ही आप तवज्जो से सुने मैं जुमला पहुंचाऊं। वो जो एक उन्होंने मिक्सचर बनाया था उसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे कहीं तजुर्बा किया तो वो काम कामयाब हो गया। इनका यकीन पुख्ता हो गया दरार छुपा लेंगे। और तो मैं क्यों आता पे मुस्कुराओ, खुदा दनाने तो हुण पता लग सी। जब उनका यकीन पुख्ता हुआ, वो काबे की दीवार के सामने आया, उसने लकीर को देखा, उसने उस दरार को देखा, उसने उस निशान को देखा जो मेरे मौला की आमद का आज भी दुनिया को मेरे बुजुर्गों पता देती है। उसने आकर देखी वो सारी धातें उसके ऊपर इकट्ठी जोड़ दी।
इकट्ठी लगाकर मशीनरी से प्लस्तर करवाया। मेरे मौला तौफीक की मदद सराई बख्शी है, मैं आपके चाहने वालों के दिलों में घर करके ये जुमला बीच में रखा हूं। उसने वो मिक्सर उसके ऊपर लगाया, उसके बाद मशीनरी से उसने प्लस्तर करवाया। प्लस्तर जब प्लेन हो गया, हर चीज साफ हो गई, तो उसके घमंड और गरूर का आलम यह था कि उसने काबे की दीवार को ऐसे कमर की और पीछे जिम्मेदारों की तरफ देख के तंजिया मुस्कुराहट दे के कहते हैं बस इतना सा काम था, ये इस काम के लिए तुमने मुझे वहां से यहां बुलाया, ये देखो तुम्हारा काम हो गया। उन हुक्मरानों ने हाथ बांध के कहा एक बार पीछे मुड़ के देख, तू हम पे हंस रहा है, दीवार तुझ पे हंस रहा है। नहीं आया बंदा जिस और भी हाथ नहीं साया शासद, आहा ये मुस्कुराहटे सलामत रहे। मिलके बोलो तू हम पे हंस रहा है, दीवार तुझ पे। आखा जुमला आखा इनसे बात अली करे सो मुक गई। तू हम पे हंस रहा है, दीवार तुझ पे हंस रही है। ये हाथ बांध के कह रहा हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। नहीं समझ आती अली अब्बास अस्करी को भाई 1400 साल से कौन सा खजाना और कौन सा इंजीनियर नहीं बुलाया गया उस काबे की दीवार में लकीर मिटाने के लिए, लेकिन नहीं मिट सकी हो मेरे शिया सुन्नी भाइयों। फिर अली अब्बास अस्करी बनता तो है ना ये जुमला कहने वाला। अरे 1400 साल में दुनिया जहान के माल और खजाने खर्च करके जो लोग अली की एक लकीर नहीं मिटा सके, वो उसकी पूरी गदीर कैसे मिटाएंगे? कितना टाइम हो गया पढ़ने? जो लकीर नहीं मिटा सके, जाओ जाकर ले के वो अकल लेना हुआ, वरना आप पढ़ना पहुंचने मेरे बाद। जो लकीर नहीं मिटा सके वो गदीर, गल सुनो जल्दी हो नहीं तो मैं थोड़ा ऐलान करा के बाहर आ वैसे। जो लकीर नहीं मिटा सके, दीर अंकल जी कैसे मिटाए? ये चीजें मिटाई जा सकती हैं। अल्लाह अकबर। मिसरा सुनिए, मिसरा जुमला कह रहे हैं अली पास। मिसरा है के पर 2-3 शेर सुनो। मैं गया, करम का तूफान बाढ़ पे है, सितम का दरिया उतर रहा है। कोई भी परेशानी हो तो प्लीज मुझसे डिस्कस जरूर कीजिएगा, मैं आपको तसल्ली देके जाऊंगा, वरना मुझे तशनगी और बेचैनी रहेगी। करम का तूफान बाढ़ पे है। मैंने अपने अंदर खुदा गवाह तय कर रखा था, कोई वर्ल्ड लेवल का जश्न होता है मलीर में, कराची में, 13-14 रजब की दरमियानी रात, कल रात मुझे वो पढ़ना है। मैंने अपने अंदर सोच रखा था कि इन मिसरों की इब्तिदाई वहां से करनी है, लेकिन जैसे मेरी मखदूमा को मंजूर वैसा हो रहा है। दूसरा मिसरा खुद बताएगा उसने कहां कहां कैसा कैसा असर किया। मैं आराम से खड़े हुए यहां पे मिसरा पढ़ रहा हूं, आप चेहरे देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां कैसा कैसा असर है। करम का तूफान बाढ़ पे है, सितम का दरिया उतर रहा है, किसी की सूरत खिली खिली है, किसी का चेहरा उतर रहा है। हाय 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 हाय। करम का तूफान बाढ़ पे है, सितम का दरिया उतर रहा, किसी की सूरत खिली खिली है, किसी का चेहरा नहीं उतरना चाहिए। खुदा की कसम चेहरों पे इत्मीनान रहना चाहिए, चेहरों पे एतमाद रहना चाहिए। वाकया मुझे छोटा सा याद आ गया, अगर आप कहें तो आपको मैं सुना दूं। किताब का नाम है अल हुसैन, लखनऊ से छपी है, उसमें से मैं ये बात पढ़ रहा हूं। करम का तुम चेहरा उतर रहा। अरे कहती मेरे मौला कायनात मस्जिद कूफा पे तशरीफ फरमा थे, बंदा आ गया, अली का शिया अली के पास आ गया। मारूफ वाकया सामीन कराम, अली का शिया अली के पास आया, मोमिन अली के पास आ गया। उस मोमिन ने आके ऐसे हाथ बांधे, अली बादशाह ने उस मोमिन की पेशानी पे कतराते इनफियाल देखे। कतराते इनफियाल आप लोग समझते हैं, किसी बड़े गुनाह के बाद जो पसीना आए उन पसीने के कतरों को कहते हैं कतराते इनफियाल, अरक इनफियाल। अली ने उसकी पेशानी पे वो पसीना देखा, अली जानते थे ये क्या गुनाह करके आया। ऐसे हाथ बांध के खड़ा हो गया। अली फरमाते हैं क्या चाहता है? था मोमिन, उसका हौसला देखें, कहता है मौला मुझसे फुला गुनाह सरजद हो गया है। अली फरमाते हैं फिर मुझे क्यों बता रहे? मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आप लोग यहां क्या करने आए हैं। ये जुमला पढ़ने के बाद मुझे क्यों बता रहा है? उसने कहा मौला मैं ये भी जानता हूं कि फला गुनाह हो गया है, आपके पास इसलिए आया हूं कि महशर के दिन भी तो सजा आपने देनी है।
तुसी बात कर ले, आ जाओ ना घर में। महशर के दिन भी तो सजा आपने देनी है सरकार, वहां तो पूरी खल के आदम होगी। उत्थे मेरी चंगी भली बेइज्जती हो वैसी करमा ले, मैं डेरेदार बनना, मेरा नक नहीं रहा, जो करना नहीं थे मुका हो करमा ले। अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने जो गुनाह किया इसकी सजा मौत है। आदिल इमाम है मेरे, जानते हैं कि ये अपना चाहने वाला है, लेकिन जो गुनाह डिजर्व करता है वो उसे सजा मिलेगी। फरमाते हैं सजा मौत है, तरीके 3 है, जो तू चाहे। उसने कहा बादशाह हुक्म करेंगे। हाय फरमाते हैं पहला तरीका ये है तुझ पे दीवार गिरा के तुझे मारूं, दूसरा तरीका ये है तुझे आग लगा के तुझे मारूं, तीसरा तरीका ये है कि तुझे तलवार चलाऊं। ज्यादा बातें मुझे करनी आती नहीं, मैं कहता हूं बंदा जश्न में बेहुजूर है जो रौनक नहीं बढ़ा सकता, जो 12-13 रजब की रात भी खुश नहीं है। खुदा करे कुछ ऐसा हो जाए कि वो मुस्कुरा जाए, मुझे उसकी परेशानी का सबब नहीं पता, जो अपनी परेशानियों को आले मोहम्मद की खुशियों पे फौकियत दे के बैठा है। ये बंदों हाथों की लाज रखना। था गुनाहगार, उसका यकीन देखना। कहता है मौला मारे मैं हाजिर हूं, लेकिन मौला दिल चाहे तो आग लगाएं, मौला दिल चाहे तो दीवार गिराएं, मौला इज्जत का वास्ता मुझे तलवार से ना मारना। अली ने कहा क्यों? उसने कहा मौला मुझे यकीन है जिस पे तेरी तलवार चल जाए उस पे जन्नत हराम हो जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिस पे तेरी तलवार चल जाए ना मेरा मौला, उस पे जन्नत हराम हो जाती है। अली फरमाते हैं जा कल जोहर की नमाज के बाद कूफा और नाए और जफ के दरमियान जो मैदान है चटियल, उसमें आई, मैं तुझे सजाए मौत दूंगा, अभी जा। आई कल तुझे सजाए मौत दूंगा, अभी जा। यही दौरे हुकूमत था अमीरुल मोमिनीन का, जहां पर मुजरिम पकड़े नहीं जाते थे, खुद आ जाते थे। ये आप बुजुर्ग फैसला कीजिएगा कि कौन क्या पढ़ रहा है। बहुत आसान है किसी को बुरा कह के दाद लेना सामीने गिरामी, बहुत मुश्किल है कीमती बात करके मजमिन भी आओ खिंचपा के तो वत गल करना। लेकिन ये देखिएगा पंड चाह बैठे हैं तो मौला ढेर करम पे कर दें। ये देखना जाइन कल आई सलमान, मिकदाद, अबू जर, कंबर, तमाम आसपास की बस्तियों में ऐलान करवा दो। नाए और जफ, नजफ नहीं था, ये 2 कबाइल थे, एक नाए एक जफ, जिनमें कत्ल और गारत के सिलसिले मुद्दतों से चल रहे थे। मेरे मौला की कब्र की बरकत से फिर इनमें सुलह हो गई और वो एक नजफ हो गया। नाए और जफ और कूफा के दरमियान जो मैदान है ना, उसमें कल अली अपने एक शिया को मौत की सजा देंगे, जिसने देखना है वो आ जाए। कहने को बात थी, खबर खुशबू बन के फैल गई। तमाशाई ज्यादा होते हैं, तमाशाई ज्यादा होते हैं, होंदे ना तमाशा वेखण वाले ढेर होंदे। ये तो असी पाकिस्तान ही रहंदे पे, सन को नहीं पता। 2 बंदे खंबे ते चढ़ के वायरिंग करते पे होंदे, 300 तले इंज ही वेखण लाउंदा उन्होंने भी ये क्यों आए ने। तो वो भी फिर कूफी थे सर जी, तमाशा देखने वाले थे। खल्के खुदा इकट्ठी हो गई, अमीरुल मोमिनीन मसनद पे तशरीफ फरमा। सर जी 100 गट्ठी सरकंडे की जिन्हों काना आदे हो, मेरे मौला ने मंगवाई, उसे प्रॉपर सेटिंग से एडजस्ट करवा दिया। एडजस्ट करवा के फरमाया वो आएगा तो उसको इसमें जलाएंगे। अली मसनद पे बैठे थे, वो भी आ गया। उसने आके मौला को सलाम किया। उसके सलाम करने की देर थी, मेरे मौला ने उसके हाथ में मशल आग जलाने का आला दे के कहा वो सामने कानों का ढेर है, जा उसमें जाके बैठ, जला और जल। अंकल जी थकिया है नहीं, अल्लाह दे नाम ने मैं तुसा बुजुर्गों दे आसरे ते पढ़दा पिया, थोड़ी मुस्कुराहट खुदा दी कसम मन पढ़ांदी पई है। जला जल के बैठा, उसमें उसने आग लगाई, आसमान की सरहद से आग के शोले टकराए। भाईजन कदी शरारतन ना काने आग ला के विख्या बहुत जल्दी लगी, उस चलाई आग ते आग दे भाबड़ उतंग गए। जिसने मंजर देखा, लोगों ने कानों पे हाथ रख लिया, आंखों पे हाथ रख लिया। अल अमान अल हफीज, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इंसान मर रहा है, इंसान जल रहा है, मजाक थोड़ी हो रहा है। दुनिया शशतर और हैरान है। आसमान की सरहद से आग के शोले टकराए, लोग हक्का बक्का खड़े थे, हैरान थे। आग के शोले ठंडे होते 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 हुए न ठंडे, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उसके कपड़ों को भी आग नहीं लगी थी, उसके कपड़ों को भी
आग नहीं लगी थी, वो सही सलामत खड़ा था। मजमा चीर के बंदा आगे आया, अली की आंख में आंख डाल के कहता या अली ये क्या माजरा, बुलाया हमें खुद, उसे सजा खुद दी। या अली वो तो जला ही नहीं। उठा जलाल के आलम में सैयदा का शोहर, उसके मुंह पे तमाचा मार के फरमाते तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, मेरा काम था इसे सजा देना। आगे मेरे शिया पे आग असर नहीं करती तो अली क्या करे। समझ अगे आग असर नहीं करती तो अली क्या करे। हुन शेर सुनो, करम का तूफान बाढ़ पे है, सितम का दरिया उतर रहा है, किसी की सूरत खिली खिली है, किसी का चेहरा एक शेर बिच सुन लो तो बात अगट हो जाए। मिसरा है कि जो अभी तक रहा खामोश वो अब बोलेगा। वैसे आपस दी गल है ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੀਡੀਐਮ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾ ਬੱਚੇ ਸੁਣੇ ਚਾਹੋ ਉਹ ਹੱਸੋ ਮੌਲਾ ਵੱਡੇ ਰੰਗ ਲਾਣੇ जो अभी तक रहा खामोश वो अब बोलेगा। लब अगर चुप रहे चेहरों पे नसब बोलेगा। ओए अब तो खुद करने लगी काबे की दीवार कलाम, तू अगर अब भी नहीं बोला तो कब बोलेगा। सर जी मिसरा है, करम का तूफान बाढ़ पे है, सितम का दरिया उतर रहा है, किसी की सूरत खिली खिली है, किसी का चेहरा। पूरी तारीख चौथे मिसरे में बंद कर रहा हूं। करम का तूफान बाढ़ पे है, सितम का दरिया उतर रहा है, किसी की सूरत खिली खिली है, किसी का चेहरा। ए झोली फैलाई खलोता, चेहरा उतर रहा है। और अजान समझो, नमाज समझो, तवाफे काबा का राज समझो। समझ लो 13 रजब से अब तक अली का सदका उतर रहा है। अजान समझो, नमाज समझो। कमर साहब के आ गया भाई, जाकिर भी आ गया। अजान समझो, नमाज समझो, तवाफे काबा का राज समझो। समझ लो 13 रजब से अब तक अली का सदका उतर रहा है, उतर रहा। मैं यही मिंबर छोड़ देता, लेकिन अब 6 मिसरे मुझे सुनिए, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। या अली मदद। मुझे बहुत अच्छा पढ़ने वाले मेरे बड़े मोहतरम मेरे मौला के मद्दाह तशरीफ ले आए, तफसील से आपको जश्न सुनाएंगे। 6 लाइनें मुझे और बर्दाश्त कीजिए। जनाब असगर साहब फिर मेरे मौला की बारगाह अज़मत वना में नजराने अकीदत तफसील से पेश करेंगे। मेरे मौला अली शहन शाह बादशाह, चंगा है ना, मेरे मौला अली शहन शाह बादशाह का ज़हूर हुआ। मेरे मौला बैतुल्लाह में तशरीफ लाए सामीने गिरामी। मेरे मौला अब सामीने गिरामी तशरीफ लाए। 3 दिन के बाद सरकार रिसालत पना आका अलैहिस्सलाम अली हसनैन खाना काबा में तशरीफ ले गए। अब आका तशरीफ लेके गए, करमा ले तुसी विख्या है लेना 6 ते तुहान मैं तरसा के एक बारी दाद लासां तुहाडे कोल, तुसी वेखो तो सही मैं तुहाडे नाल करेंदा कि आ करदा पिया। आका तशरीफ लेके गए, अली बादशाह को अपने इजाजत, अली बादशाह को अपने हाथों पे उठाया, हाथों पे उठा के बाहर आए। नवीद अब्बास नवीद बहुत अच्छे शायर हैं फैसलाबाद से, वो लिख रहे हैं, कहते हैं आका अली को उठा के बाहर आए तो बाहर नबियों की कतार ने इस मंजर को देखा कि अली नबी के हाथों पे हैं। अब माहौल क्या है ये देखना, ये आका अली को उठा के ला रहे हैं, माहौल क्या है। वो फरमाते हैं मौसम तेरे ज़हूर के सांसों पे रख लिए, नबियों ने दिल निकाल के हाथों पे रख लिए। मौसम तेरे ज़हूर के सांसों पे रख लिए, नबियों ने दिल निकाल के हाथों पे। खुदारा चौथी लैंड अंकल जी मेरे मोहतरम, हाथों पे रख लिए। फिर मंजर देखकर पलकों के साएबान भी राहों पे रख लिए। मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे रख लिए, मूसा ने अपने हाथ और नवाज, मूसा ने अपने हाथ, मिसरा मेरे कद से बड़ा है, सामने गिरामी मिंबर में अपने भाई के हवाले कर रहा हूं। मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे रख लिए,
बोला वही जलान है हैदर के नूर पे, इसको तो मैंने पहले भी देखा है तूर पे। मिलके बोलो नारे हैदरी।